Hello, students. Welcome to the New Era Global School online classes. Myself, Karan Sonagra. Today, we will learn about the chapter number 5, which is acids, bases, and salts. So, topics to be covered in this video are objectives of this chapter, acids and its classification, bases and its classification. So let's start our today's session with the objectives behind to learn this chapter. At the end of this chapter, students should be able to state how acids, bases and salts are classified, how to name a salt, use of indicators, properties of acids, bases and salts, uses of acids, bases and salts, and also students able to identify substances based on color changes with natural indicators and substances based on their pH. Now you have studied that how the taste buds on the tongue help to sense for different tastes. सो यहाँ पर अलग अलग 4 चीज़ें दी हुई है एंड आपको इस चारों चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है वो बताना है. तो लेमन है वो कैसा टेस्ट देता है, या तो उसका टेस्ट कैसा होता है, श्योर खट्टा होता है, राइट. देन आइसक्रीम वो स्वीट होता है. देन ये फ्रेंच फ्राइज वो सॉल्टी होते हैं और ये करेला बीटर होता है, राइट. सो दिस आर द टेस्ट्स ऑफ दिस 4 थिंग्स, लेमन श्योर, आइसक्रीम स्वीट, फ्रेंच फ्राइज सॉल्टी एंड करेला जो है वो होता है बीटर, इट मीन्स कड़वा. देन लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड्स or the types of compounds. In the previous chapter, it means in chapter number 4, we have studied that compounds are substances which are made up of 2 or more elements which are chemically combined in fixed ratio. मतलब कि जो compounds होते हैं वो एक तरह के substance है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और ये केमिकल कॉम्बिनेशन है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है, राइट. सो दैट काइंड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कंपाउंड. सो देयर आर many types of compound, or you can say the compounds can be categorized into 3 types: acid, bases and salts. So in this chapter we will discuss about the 3 compounds: acids, bases and salts. So let's start with the acids. So acid ये जो term है it comes from the Latin word acidus, right, which means sure. sure का मतलब होता है खट्टा, right. So sure taste is the one of the main characteristics of an acid. जो ये खट्टा टेस्ट है it is one of the main characteristics of an acid. जो एसिड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से ये एक है. इसका मतलब ये है कि एसिड्स कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं. द टेस्ट ऑफ ऑल एसिड्स वुड बी श्योर. Substances such as curd, tamarind and lemon are sure in taste due to the presence of acids
इन सब का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, राइट। तो एसिड की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है कि उनका टेस्ट श्योर होता है, खट्टा होता है, राइट। नाउ let's move on to our next topic, which is classification of acids. So based on the three category, or based on the three factors, the acids can be categorized on organic and inorganic acid, then concentrated acid and dilute acid, and strong acids and weak acids, right. So these are the types of acids. So based on their occurrence, or you can say based on their source, कहाँ से ये मिल रहा है उसके बेस पे it can be divided into organic and inorganic. So organic acids कौन से होते हैं, तो acids which obtained from the natural sources such as plants and animals are called organic acid. ऐसे acids के जो natural sources जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में से जो एसिड्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स. सो देर आर ऑल्सो नॉन एज नेचुरल एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स को नेचुरल एसिड्स भी कहा जाता है. सो हियर फ्यू एसिड्स आर गिवन विच आर फाउंड फ्रॉम द प्लांट एंड विच आर फाउंड फ्रॉम द एनिमल. एनिमल्स में से जो एसिड्स मिलते हैं वो, और प्लांट्स में से जो एसिड्स मिलते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. तो साइट्रिक एसिड है वो कहाँ पर मिलता है, लेमन एंड ऑरेंज में से. टार्टरिक एसिड है वो कहाँ पर मिलता है, ग्रेप्स एंड टैमरिंड में. देन साइट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड्स है वो किस में से मिलता है, टोमेटो में. मैलिक एसिड है वो एप्पल में से भी मिलता है. ऑक्सैलिक एसिड है वो स्पिनिच में से मिलता है. सो दिस आर दी acids which are found in plants. Now in animals lactic acid मिलता है, uric acid मिलता है, formic acid मिलता है और lactic acid. तो lactic acid है वो कहाँ पर मिलता है, it is produced in the muscles during exercise. जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स में जो एसिड प्रोड्यूस होता है that kind of acid और that acid is लैक्टिक एसिड. ऑल्सो सॉर मिल्क एंड कर्ड, जो ये हम लोग ये बोलते हैं कि दूध फट जाता है या तो जो दही बनता है उससे, तो उस दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड. देन एंड स्टिंग्स, जो ये चींटियाँ हमें डंक मारती है तो उस चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड. देन यूरिन में होता है यूरिक एसिड. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एसिड्स विच आर फाउंड इन एनिमल्स. So citric, tartaric, malic, oxalic, these are the acids which are found in plant, and lactic, uric and formic acids which are found in animals. Then inorganic acids, it means the acids obtained from minerals and synthesized in laboratories. जो लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज्ड हुए हो या तो मिनरल्स में से मिल रहे हो, ऐसे उस एसिड्स को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स. से फॉर एन एग्जांपल नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला है H2SO4, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला है HCl. दिस आर दी एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, या तो आप इसको बोल सकते हो मिनरल एसिड्स. तो ऑर्गेनिक एसिड्स है दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल इनऑर्गेनिक एसिड्स है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज. तो जो टोमेटो है इट कंटेन्स साइट्रिक एंड मैलिक एसिड्स विच इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स. नाइट्रिक एसिड्स है वो कोरोसिव होता है जो कि एक इनऑर्गेनिक एसिड्स है. बट रिमेंबर वन थिंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड is found in digestive fluid of certain animals. कुछ एनिमल्स ऐसे ही कि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइजेस्टिव फ्लूइड के जैसे होता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनिक एसिड. जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज़ एन
इनऑर्गेनिक एसिड, जबकि ये कुछ एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है, बट फिर भी हम लोग उसको ऑर्गेनिक एसिड में कंसीडर नहीं करते हैं. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, acids can be divided into two categories, concentrated and dilute. So concentration is the amount of acid present in its aqueous solution. Aqueous solution मतलब कि water solution में जितने amount में acid present है, तो that amount is called concentration, right? So based on the concentration, acids can be divided into two categories, concentrated acid and dilute acid. तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इज़ हायर देन द अमाउंट ऑफ वाटर. अगर हम लोग वाटर में मिक्स कर रहे हैं एसिड को, तो वो एसिड की जो अमाउंट होती है वो वाटर के अमाउंट से ज़्यादा होती है. तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन और दैट काइंड ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड में जो एसिड है उसका अमाउंट वाटर से ज़्यादा होता है. बट अगर डाइल्यूट एसिड है तो द अमाउंट ऑफ एसिड है इट इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वाटर. तो वाटर के अमाउंट से अगर एसिड का अमाउंट कम है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो दैट सॉल्यूशन और दैट एसिड इज़ कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. तो अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और अगर एसिड की अमाउंट कम तो डाइल्यूट एसिड. बट रिमेंबर, टू मेक एन एसिड डाइल्यूट, अगर एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसमें जो वाटर है वो स्लोली ऐड करना पड़ता है और कंटिन्यूसली आपको स्टेयरिंग करनी पड़ती है, मतलब कि आपको घुमाना पड़ता है कंटिन्यूसली, उसको ठीक से मिक्स करना होता है, राइट. तो दिस प्रोसेस रिलीज हीट एंड स्पेशल केयर शुड बी टेकन. इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है तो बहुत ही ध्यान से ये करना होता है. देन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ के बेस पे जो एसिड्स होते हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. कौन से? इनऑर्गेनिक एसिड. सो विच आर corrosive, तो इट कैन बर्न द स्किन. सो दिस काइंड ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स है जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो दिस एसिड्स आर corrosive एंड इट कैन बर्न द स्किन, राइट. तो ऐसे एसिड्स को कैसे एसिड बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जबकि ये वीक एसिड है वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है सच एज मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. तो दिस काइंड ऑफ एसिड्स आर not as corrosive as strong acid. They are also weak acids. जो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड जितने corrosive नहीं होते, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स है वो corrosive होते हैं और वो स्किन को भी बर्न कर सकते हैं, राइट. तो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन acids can be divided into concentrated and dilute acid. Based on strength, acids can be divided into strong acid and weak acid. Also, based on the source, acids can be divided into organic acid and inorganic acid. So, organic acid say they are obtained from plants and animals. So that's it in the acids. Now let's move on to the bases. सो बेसिस कैसे होते? दे आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच व्हेन इट इज़ मिक्सड विद द वाटर. जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, राइट. बट जब भी उसको आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो वो सॉपी हो जाते हैं, बबल्स जैसे फॉर्म, या तो आप ये बोल सकते हो कि फॉर्म प्रोड्यूस होता है. दे कैन जनरली बी फाउंड इन हाउस होल्ड क्लीनर्स, डिटर्जेंट्स एंड डिश वॉशिंग लिक्विड्स. ये कहाँ पर मिलते हैं? जनरली क्लीनर्स में, डिटर्जेंट्स में और डिश वॉशिंग का जो लिक्विड आता है उसमें. बेसिस आर ऑल्सो फाउंड इन सोप्स एंड टूथपेस्ट. सोप्स में और टूथपेस्ट में भी बेस आपको मिलता है. सी वाटर, एग वाइट्स एंड वॉश
स्टिंग्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये जो सी वाटर है वो भी बेसिक है, एग वाइट से वो भी बेसिक है, और वो स्टिंग भी बेसिक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए बेसिस के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग देखें तो वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, दे विल मेक अ फॉर्म और दे विल बिकम सोपी व्हेन दे आर मिक्सड विथ वाटर, राइट। वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो क्लीनर्स में, हाउस होल्ड क्लीनर्स में, डिटर्जेंट्स में, डिश वॉशिंग लिक्विड्स में वो यूज़ होते हैं, ऑल्सो टूथपेस्ट में और सोप में यूज़ होते हैं। बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो अल्कलीज किसे कहा जाता है कि जो भी बेसिस है वो अगर वाटर में सॉल्युएबल है, डिज़ोल्व हो जाते, तो वो बेसिस को अल्कलीज कहा जाता है। सी फॉर एन एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड इज नॉट एन अल्कली। कॉपर ऑक्साइड है वो अल्कली नहीं है, क्यों? क्योंकि डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर में वो डिज़ोल्व ही नहीं होता, वाटर में वो सॉल्युएबल ही नहीं है। बट जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो अल्कलीज है। क्यों भाई? क्योंकि दे डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट। तो जो वाटर में डिज़ोल्व होते उसको अल्कलीज बोला जाता है, और जो नहीं होते उसको कुछ भी नहीं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेवल of classification of bases. So bases can be classified into two categories based on their strength only. So strong bases and weak bases. So corrosive bases जितने भी है, right, such as calcium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide. So this kind of bases are called strong bases, and non-corrosive bases जो है जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सो दिज आर वीक बेसिस। तो जितने भी कोरोसिव है दोज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड जितने भी नॉन कोरोसिव है दोज आर वीक बेसिस। सो bases can be classified into two categories, strong bases and weak bases, right. Remember, the caution should be taken while handling chemical substances, whether they are corrosive or non-corrosive. Corrosive substances are usually stored in a container marked with the special symbols. So you have to find out what kind of symbols are used. तो उसको ड्रॉ करना है एक पेपर पे, राइट। तो जितने भी कोरोसिव या तो नॉन कोरोसिव केमिकल सब्सटेंस है उसको बहुत ही ध्यान से आपको हैंडल करना होता है, और उसमें भी अगर कोरोसिव सब्सटेंस हो, राइट, तो वो यूजुअली कंटेनर में स्टोर किया जाता है और उस कंटेनर पे एक स्पेशल तरह का सिंबल बनाया जाता है। तो वो सिंबल कौन सा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।